Assalamualaikum student. Today the date is 16 June 2020 and the day is Tuesday. We have started our chapter number 9 which was about the chemical equilibrium. Now we are going to solve test yourself 9.2. Hopefully you have also solved it at home. First question is define the law of mass action. The answer is given in the book in the previous topic. लॉ ऑफ मैस एक्शन, इसमें जो डेफिनेशन है आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, इसको अंडरलाइन कर लेना है अंडर द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टेस्ट योर सेल्फ 9.2. आंसर इज द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the active masses of the reacting species. Question number 2. How the active mass is represented? Answer is the active mass is represented in the form of square brackets. Question number 3. What do you mean by equilibrium constant? Equilibrium constant किसे कहते हैं? Ratio of the product of the concentration of products raised to the power of coefficient to the product of concentration of the reactants raised to the power of coefficient expressed in a balanced chemical equation like in ये आपकी है, इसका ये आंसर है the rate of the product of concentration of products raised to the power of coefficient to the rate of the product of concentration of reactants raised to the power of coefficients. Question number 4. Point out the coefficients each in the following hypothetical reactions. इसमें आपने coefficients बताने हैं कौन कौन से हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन के जो coefficients हैं आपने coefficient in the forward reaction 2 and 3. Coefficient in the reverse reaction 4 and 2. Coefficient in the forward reaction is 4. Coefficient in the reverse reaction is 2 and 3. Coefficients in the forward reaction 2 and 4. Coefficients in the reverse reaction is 5. Write down the इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. आपने इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस लिखना है फॉलोइंग रिएक्शंस का, जैसे इन दिस फॉर्म. इस फॉर्म में आपने लिखना है, इस तरह से सारा आपने लिखना है. रिएक्शन आपके पास ये दिया गया है नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है. फिर आपने इसका रिएक्शन लिखना है इस फॉर्म में. द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये सारे आपने सेम लाइक दैट आपने इन रिएक्शंस के भी ऐसे ही एक्सप्रेशंस लिखने हैं. ये हम लोग पहले भी इनके प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस अपनी नोटबुक पे और ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स. Equilibrium constant is the ratio of the product of concentration of products raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficient as expressed in a balanced chemical equation. Kc, product of concentration of products raised to the power of coefficients over product of concentration of reactants raised to the power of coefficients. इस पॉइंट्स को नेक्स्ट इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है. इट इज़ कन्वेंशन टू राइट द प्रोडक्ट्स साइड numerator and reactants as denominator. By knowing the balanced chemical equation for a reversible reaction, we can write the equilibrium expression. Thus, we can calculate the numerical value of Kc by putting actual equilibrium concentrations of the reactants and products in equilibrium expressions. The value of Kc depends only on temperature. It does not depend on the initial concentration of the reactants and product. It is the important point highlighted. A few problems have been solved to make the concept clean. Kc has no unit in reaction with equal number of moles on both sides of the equation. This is because concentration units cancel out in expression
फॉर Kc, दैट इज़ ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है। इस रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन दे विल कंबाइन एंड फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हम लोग उसका एक Kc लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, तो हमारे पास प्रोडक्ट थी हाइड्रोजन आयोडाइड और इसके मोल को हमने इन द फॉर्म ऑफ पावर यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन एंड आयोडीन, मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि हमने नंबर ऑफ़ एटम्स के पार्ट नहीं बनाने, हमने सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल्स की बनानी है। हमें ये पता है कि हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द यूनिट ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन इसके ऊपर स्केयर है तो यहाँ पे भी हम लोग स्केयर लगाएंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी यूनिट, इन सब के यूनिट हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही रहेंगे। कंसंट्रेशन के सबके यूनिट्स हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होते हैं। हाइड्रोजन मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी दोनों, इनका भी स्केयर आ गया, ये सारे दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो दिस इक्वेशन हैज़ नो यूनिट फॉर रिएक्शंस in which the number of moles of reactants and products are not equal in the balanced chemical equation. Kc of course have units, that is for the reaction nitrogen and hydrogen will combine and ammonia will form. There are total 4 moles, 3 plus 1 4, but in the product only 2 moles are formed. Kc अमोनिया, आपने इसकी ये इक्वेशन लिख लेनी है, इसको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोगों ने फाइंड लिख लेना है। Kc अमोनिया, ये इसके 2 मोल्स हैं और ये आपने इस तरह से लिख लेना है। फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, इसका भी इसकी कोई पावर नहीं है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी 3 थी तो ये 1 ओवर ये 2 के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, पीछे यहाँ पे 2 रह जाएंगे, मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ये जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6 आ जाएगा इसका। प्रॉब्लम, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री C टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलो, हाइड्रोजन and iodine they will combine to form hydrogen iodide. The equilibrium concentrations are हाइड्रोजन की 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन की 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड हाइड्रोजन आयोडाइड की हमारे पास 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर दी गई है। सोल्यूशन है इसका, गिवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोगों ने सारा अपना डाटा लिख लिया है। डाटा लिखने के बाद राइट द एक्सप्रेशन, हमें पता है Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड है और रिएक्टेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन है। यहाँ पर हमारे पास स्केयर आएगा क्योंकि हमें पता है कि रेज टू द पावर, कि जो भी हमारे पास कंसनट्रेशन आएगी ये उसको हम लोगों ने उसकी पावर में लिखना है। नाउ पुट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस वैल्यू इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस। हम लोगों ने यहाँ पे इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन थी वो लिख ली, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लिख लिया और आयोडीन की कंसंट्रेशन लिख लिए और इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो Kc हमारे पास 80 आए। और यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, जैसे हम लोगों ने पीछे भी प्रूव किया था कि हाइड्रोजन आयोडाइड हैज़ नो यूनिट। प्रॉब्लम 9.2, for the formation of ammonia by Haber's process, hydrogen and nitrogen react reversely at 500 degree C as follow. Nitrogen and hydrogen combine and ammonia will form. ये भी सेम ऐसे ही आपने करना है। आपने 9.2 और 9.3 की अपनी नोटबुक पे आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो उन पॉइंट्स को आप लिख लें, उनको नोट कर लें और फिर आप उन पॉइंट्स को क्लियर कर लें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।